अमित शाह जी सो रहे हैं भाई, मत उठाओ उनको। वाह, पूरे जंतर मंतर में इतना सब कुछ हो गया। एक बयान दिया उन्होंने, बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुआ, बच्चों पर बिहार में AK-47 चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। अमित शाह जी का एक भी स्टेटमेंट आया? फिर बाकी के ये जो RSS के चेले चपाटले हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। सारे सवाल हमको, और उनको क्या नया धोती पहना है वो पूछ रहे हैं? सर कब पूछे बोले भाई? अभी मेरे नहीं, आपके मीडिया वाले सारे हैं इधर, कब पूछे बता दीजिए। एक भी कठिन प्रश्न उनको पूछा है कि एक बार बोल दीजिए। असल में गृह मंत्री है तो उसको इमीडिएटली जेल में डालना चाहिए, वो मोहनदास को। इफ ही सीरियस and if he really cares about the future of the youth, this language will not be tolerated. RSS is not going to register itself. If they will register itself, and if you will find something fault in the accounts of RSS, then you can also think about banning RSS. No. I have not said that. Please don't put words into my mouth. I am clear that if there are 20 lakh people roaming around the streets of my state in an uniform with lathis, and you expect the Department of Home to provide you with security, you need to let me know who you are. And once you have, let me know who you are, and if you are going to do anything illegal, you will have to be treated by the law of the land, as simple as that. पहले तो register करो. I am not going to say it. The Department of Home is not a slave to any organization. The government is not a slave to any organization. कि आप एक information दे दो and will come and be a part of your route marches. Register yourself, tell us who you are, what you do, जिम्मेदारी लो, accountability दो, then we will help you. Who is saying no? But you had written a letter to Mohan Bhagwat. Till now, there is no such reply. I know has been they will given. not also reply. They are cowards. They will not reply. And I know how to get a reply from them. Yeah. Should I discuss that in front of media? I know what to do. I'm the Minister for Home from one of the most progressive states in India. We apply mind and we'll apply the legality of it also. आज तक जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर, जैसे अभी केरल के एक RSS के नेता ने कहा, उसी तरीके से बीजेपी सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने भी जनजीव को लेकर, खासतौर पर महिलाओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी करी। उनका कहना है कि See, this is the RSS thought process. This is exactly what we are fighting. If this ideology is so good, why aren't BJP's children in RSS? Why are BJP's children not Swayam Sevaks? Why are BJP's children not in Shakas? Why are they not drinking Gaumutras? This is the thought process that we are fighting. And if Mr. Mohan Bhagwat, who has an opinion on India's foreign policy, who has an opinion on the economic activities, who has an opinion on how the country should be run, should come out and apologize for this. He should be answerable. Why is it that these questions are asked only to the opposition? जाके माइक चिपकाइए मोहन भागवत जी कि आपका संगठन वाला, आपका स्वयं सेवक तो देशभक्ति की बात करता है, ऐसे बेहुदा बात करता है। सर, आप कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। अभी प्रियंका गांधी ने संसद में भी कहा कि गर्भवती महिलाओं के बलात्कारियों की रिहाई पर इन्होंने सहमति दी थी, जिसपे किरण रिजिजू ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए प्रियंका गांधी। दिस इज द प्रॉब्लम ना, ये सारे सवाल हमको पूछते हैं, जाके जोशी जी से क्यों नहीं पूछते? पूछिए कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, पूछिए रिजिजू जी से कि आप इसका समर्थन कैसे कर रहे हैं। सारे सवाल हमको, और उनको क्या नया धोती पहना है वो पूछ रहे हैं? सर, कब पूछे बोले भाई? अभी मेरे नहीं, आपके मीडिया वाले सारे हैं इधर, कब पूछे बता दीजिए। एक भी कठिन प्रश्न उनको पूछा है कि एक बार बोल दीजिए। सर, आप गृह मंत्री हैं, TS मोहनदास का जो बयान आया है, क्या वो कानूनी दायरे में नहीं आता? देखिए, वो केरला में स्टेटमेंट दिया, कंप्लेंट दीजिए, उसको भी अंदर डालेंगे कर्नाटका में। बतौर गृह मंत्री अमित शाह को क्या करना चाहिए था इस तरह के बयान को लेकर? देखिए, अमित शाह जी सो रहे हैं भाई, मत उठाओ उनको। वाह, पूरे जंतर मंतर में इतना सब कुछ हो गया। एक बयान दिया उन्होंने, बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुआ, बच्चों पर बिहार में AK-47 चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। अमित शाह जी का एक भी स्टेटमेंट आया? मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है, जिसका स्टेटमेंट लेना चाहिए वो तो अपने ले नहीं रहे हैं।
अब कर्नाटका के गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, ना ही अपने देश के गृह मंत्री से। उनको क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ मुझे क्यों है अकाउंटेबिलिटी? हाँ, आप केरला का सवाल कर्नाटका के मंत्री से पूछ रहे हैं और होम मिनिस्टर और जंतर मंतर का सवाल अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सर, मैं यही पूछ रहा था कि बतौर गृह मंत्री उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर रेप महिलाएं देखिए जी, देखिए अगर वो असल में गृह मंत्री है तो उसको इमीडिएटली जेल में डालना चाहिए, वो मोहनदास को। इफ ही सीरियस and if he really cares about the future of the youth, this language will not be tolerated. This filthy language will not go on in my country, and he should set an example of him. फिर बाकी के ये जो आरएसएस के चेले चपाटले हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। So one last question from your state. Can we expect cabinet expansion very soon? Because All the of you, meeting why do you is- ask questions that are above my pay packet? Like example, he is asking about Amit Shah ji. He is asking. CM has given statement कि हो जाएगा, आजकल में हो जाएगा। Thank you. दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।